Okay. We were on two more questions and then we can start with our objective level 1. This is introductory exercise 27.7, question 1. Okay. What is it telling you? That a long solenoid of cross-sectional area, there is a big solenoid which is there. And इसका जो cross sectional area है, that is 5 centimeter square. ये दिया is wound with having 25 turns. तो इसके पास number of turns जो है, that number of turns which it is having, I'll name this as 25 turns per centimeter. There is number of turns per unit length. Okay, turns per centimeter. मतलब 1 centimeter में इतना है. It is placed in the middle of a closely wrapped coil of 10 turns. So there is another coil. Okay. Having how many turns? This is having 10 turns. Okay. This is having 10 turns. ठीक है. आगे क्या कह रहा है? And radius is 25. So इसका जो बड़ा आ रहा है ना, 25 centimeter. That's -2 meter. What is the EMF induced on the coil when the current in the solenoid is decreasing at the rate of, so di by dt is decreasing at the rate of 0.2 ampere per second. Minus है, so that we know it. Okay. अच्छा, इसका याद है मैंने थियरी में एक डेरिवेशन किया था that M म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है दोनों के बीच में is mu0 n1 n2 छोटो एरिया by L. याद है क्या? हेलो यार बोलो. mu0 Yes, sir. n1 n2 एरिया बाय L. एंड एरिया मैंने आपसे कहा था कि छोटा एरिया लेना है, बड़ा एरिया काम नहीं करेगा इधर, बड़े एरिया से लिंक नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर अगर वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो mu0 is 4 pi into 10 is to -7, n1 is 25, n2 is 10, एरिया स्मॉल. अच्छा, एरिया स्मॉल इज दिस, हाँ, छोटो एरिया, ये तो बड़ा एरिया स्मॉल इज 5 into 10 is to -4 पर सेंटीमीटर है ना, ये पर सेंटीमीटर मतलब -2 मीटर. तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको जो मिलेगा, ठीक है, तो भी आंसर आएगा m का वैल्यू. अच्छा, कैन आई से बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम m जो रहेगा वो 2 to 1 और 1 to 2 सेम होने वाला है. तो कैन आई से द पहला वाला क्या बोला, ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बिकम m di by dt. तो m यहाँ से ले लो, m जो मिला है यहाँ से, and di by dt का मैग्नीट्यूड इज 0.2. you will get the EMF induced in volt. This is how you do it. This is for E. Okay, E. EMF induced here. Second वाला क्या बोल रहा है? What is the electric field induced in the coil? This is very very important to understand. मैंने आपसे क्या कहा था? Electric field induced in the coil. Okay. मैंने आपसे क्या कहा था लास्ट टाइम? मैंने आपसे जब नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि भाई ये आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड induced electric field. I told you to use the formula ये integration of E bar dot dl bar is EMF. बराबर है क्या? डेराइव किया था ना इससे, dB by dt आता है वो सब. अच्छा, मेरी बात सुनो, तो ये E ढूंढने का, ये ढूंढने का.
ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl, which is the length of the coil where the electric field is being asked. याद है ना? यानी ये e का वैल्यू तो मालूम है ना पीछे से. अरे भाई ढूंढा ना अभी m di by dt है. तो e will become integration of dl. Integration of dl will become l, but l will be which r? They have asked you what? देखो किधर पूछा है? कॉइल में. तो कौन सा r लेंगे? बड़ा r के छोटा r? कौन सा एरिया लेंगे आप? ये वाला r लेंगे ना, बिकॉज यहाँ पर ढूंढने का. Getting it or not? तो ये r वाला. Can I say this will be 2 pi बड़ो r is equal to e, और e will become equal to e upon 2 pi r. e पीछे से ढूंढना ना हम लोगों ने m di by dt से. आंसर विल बी वोल्ट पर मीटर. क्लियर है क्या? बोलो. सही है ना? चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. वैल्यू तो आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंगली. यस, फाइन. सो दिस इज क्वेश्चंस which are based on non-conservative electric field. Non-conservative electric field. Must pay attention please. अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है. We'll come to the next question. Very good question. Pay attention. अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था कि दो फॉर्मूलाज हमने प्रूव किए थे नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के. एक था E इनसाइड. If you remember, it was R alpha by 2, where alpha was dB by dt. And E outside क्या था? R square alpha by 2R. याद है ना भाई? हेलो 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 हेलो. सही है. करेक्ट. For the situation described in the figure, the magnetic field changes with time according to B. 2t cube minus 4t square plus 0.8. ये तो dB by dt कितना हो जाएगा? Which is our alpha. ये 6t square minus 8t बराबर क्या? सही है. हेलो बोलो. हेलो हेलो हेलो. यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना? हाँ. कैलकुलेट द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन लोकेटेड एट P2. अच्छा, P2 किधर है? P2 बाहर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है? देखो मैग्नेटिक फील्ड ये एरिया में चेंज हो रहा है. सही है क्या? इसको पकड़ते हैं हम लोग बड़ो आर. याद है बड़ो आर पकड़ते थे. और P2 जो है वो इधर है. देखो ये P2 है. डायग्राम देखो. ये अगर मैं यहाँ पर एक कॉइल बना लूं, ये मेरा छोटा आर है. कहना इसे इधर ई जो ढूंढने का है वो ई आउटसाइड है ना? सही है क्या? यस सर. अच्छा एक मिनट. हाँ अभी मेरी बात सुनो. कैन यू टेल मी डीबी बाई डी टी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ये फॉर्मूले को देखो. टाइम के हिसाब से ये फॉर्मूला, ये नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बहुत मजेदार चीज है. बहुत अच्छा समय है. चलो टाइम 1 पुट करो, 2 पुट करो, ओरली पुट करो. भाई आंसर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम ऑन मैन. इफ यू पुट टाइम 0 इट इज 0. इफ यू पुट टाइम 1 क्या हो रहा है? देखो क्या हो रहा है समीर? Mine. बढ़ रहा है. कम हो रहा है ना? हेलो यार बोलो. सब लोग बोलो. So first will फर्स्ट विल इंक्रीज. अरे यार sorry, टाइम first will डिक्रीज ही हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है स्टार्ट में, और फिर क्या होगा टाइम 2 पे? increase. 2 डालेंगे. 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 16. ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4. हाँ ये बढ़ रहा है. बराबर क्या? अच्छा यहाँ पे पूछा गया आपको कितने सेकंड पर है? 2 सेकंड 2 पर. sec. Okay. सब लोग इधर मेरी बात सुनो प्लीज. वैल्यू. सो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन लोकेटेड एट पॉइंट P2. अच्छा पॉइंट P2 इनसाइड है क्या आउटसाइड है? आकृति नहीं. कम ऑन मैन. पॉइंट P2 इनसाइड है क्या आउटसाइड है? आउटसाइड. आउटसाइड है. तो यहाँ पर E आउटसाइड का फॉर्मूला लगेगा.
क्या फॉर्मूला है इसका? आर स्क्वायर अल्फा बाई 2r, सही है क्या? यस सर। अच्छा बड़ा आर कितना है? बड़ा आर कितना है देखो, यहाँ पे दिया है छोटा आर इज 2r विच इज 5 सेंटीमीटर, तो छोटा आर इज 5 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज बड़ा आर? सही है क्या? हेलो बोलो यार, हेलो। ये क्या हो गया? Yes, sir. 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.5 स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ हो गया। 2 छोटो आर इज 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू -2 इंटू अल्फा इज dB बाई dt, dB बाई dt एट टाइम इज इक्वल टू 2 कितना होएगा? बिकॉज ये टाइम इज इक्वल टू 2 पे मांग रहा है, कैन यू पुट एट टाइम इज इक्वल टू 2, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? अरे पुट करो ना यार। 8. 8 8. होता है क्या? 8 सही है क्या? तो ये 8 का वैल्यू इधर आ जाएगा। हेलो हेलो, यार कोई रिप्लाई नहीं करता यार। हाय, कौन? क्लियर है, ये मिल गया है। तो ये आउटसाइड का फॉर्मूला वैल्यू जो आएगा आपको, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा वोल्ट पर मीटर में, ये ई आउटसाइड मिला। अच्छा फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मैंने आपसे कहा था एफ इज इक्वल टू क्यू ई, लगता है इधर एफ इज इक्वल टू Q. क्यू इंटू ई। क्यू का वैल्यू कितना है? और ई आउटसाइड का यहाँ से उठा के put it in ये कहते हैं, बोलो सही है क्या? हेलो, क्लियर है, सबको समझा गया? हाँ ये Yes, sir. समझना चाहिए। ठीक है, अब Yes, sir. ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब अंदर क्या बोल रहा है? ये पहले पहले वाला सम था। बी वाला सम क्या बोला है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 at time is equal to 3 seconds, R1 is 0.02, for the direction see whether the field is increasing or decreasing at times। ठीक है, तो ये मैं रब करूं, चलेगा क्या? हेलो, ये रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट, बराबर है? हेलो, Yes, sir. ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब ये क्या बोल रहा है अंदर? अब ये बोल रहा है पॉइंट P1 पे जाने का, P1 अंदर है, तो ये dB बाई dt है मेरा। Can I say this is your बड़ो R and अंदर एक छोटो R है, ये छोटो R इज पॉइंट P1, तो यहाँ पर आप कॉइल बना लो अंदर। अच्छा मेरे को मालूम है dB बाई dt विच इज माई अल्फा कितना है? कितना रहेगा? 6t स्क्वायर माइनस 8t, सही है क्या? हेलो, अच्छा टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पर वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? ये dB बाई dt जो b बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे Increasing. इंक्रीजिंग हो रहा है, बराबर है, सही है, इंक्रीजिंग है। ये तो क्या है? ओके इट इज इंक्रीजिंग। अब मजा आने वाला है, इधर ध्यान दो, मेरी बात सुनो। इंक्रीजिंग, तो ये वाला जो कॉइल है ना, ये वाला जो कॉइल है, डॉटेड डॉटेड वाला कॉइल है, ये कॉइल बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। ये जो कॉइल है यहाँ पर, ये जो कॉइल दिख रहा है आपको, ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा? डॉट बनाएगा कि क्रॉस बनाएगा लेंस लॉ के मुताबिक? यार तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो तो मजा नहीं आएगा, कम ऑन मैन टेल मी। Dot. ये डॉट बनाएगा खुद, बराबर क्या? Yes, sir. डॉट बनाएगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर है कि अंदर है? बाहर है, बराबर। Wow. बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कौन सा डायरेक्शन में आएगा? ऐसे आएगा ना। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो। Yes, sir. ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा अब मजा आएगा, तो सब लोग मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज, पे अटेंशन। अच्छा ई कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ई इनसाइड के या आउटसाइड का? इज आर अल्फा बाई 2, सही है क्या? अच्छा छोटा आर कितना है? छोटा आर दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो छोटा आर दिया हुआ है 0.02। अल्फा कितना है 3 सेकंड्स पर? अगर इधर वैल्यू 3 डालू मैं इसमें,
20. 30. कितना होता है? 30 होता है क्या? जो भी होता है देखना, बाई 2, 0.01 इंटू 30, 0.3 हो गया क्या? हेलो यार बोलो। Yes, sir. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0.3 है, टेंजेंशियली घूम रहा है, बराबर क्या? अब आपको पूछा है कि, ये नहीं पूछा, आपको पूछा है व्हाट इज द, हाँ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड, हाँ यही पूछा है भाई, यही पूछा है, ये पूछा है, हाँ यही पूछा, हो गया आंसर। समझा गया? हेलो। अच्छा सपोज, सपोज आपको पूछता अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है और कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, कौन बताएगा? अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है तो इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? अरे यार कुछ बोलो ना। इलेक्ट्रॉन फील्ड के Opposite direction. डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ये ऐसे ऐसे जाएगा, बराबर क्या? F इज इक्वल टू ई, सही है ना? ई तो मालूम है ना, 1.6 इंटू -19, और ई का वैल्यू कितना रहेगा? ये 0.3। आंसर विल कम इन न्यूटन। बोलो सही है क्या? Yes, sir. आज क्या हो रहा है यार? वीडियो ऑन करके रखो सब लोग प्लीज। Put off the lecture only, man. Come on, please, fast. Belwalkar, come on, switch on your video fast. Rahil Kothari, what is going on? I can't understand, man. Please. So this concept is done. ये concept बहुत ज़्यादा important है. In today's, it is very much trending questions. Okay, E inside and E outside. और कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बराबर है क्या? कौन से Yes. डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? ठीक है, अब हम लोग आते हैं नॉर्मल ऑब्जेक्टिव सम्स की तरफ। वेलकम टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ लेवल 1। ठीक है, अब ध्यान देना फटाफट, कम ऑन। वी आर कंप्लीटिंग एटलीस्ट कितना, 25 कंप्लीट करेंगे आज। हेलो सही है ना? Yes, sir. 25 कंप्लीट करना है, इजी है एकदम। पूरा ईएमआई कंप्लीट हो चुका है, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मंडे तक हम लोग, मंडे या वेडनेसडे लास्ट लास्ट हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो आप लोग आंसर देना। When number of turns in the two circular coils are closely wound is doubled. दो कॉइल है, दो कॉइल में कौन सा इंडक्टेंस लगेगा? सेल्फ इंडक्टेंस के म्यूचुअल इंडक्टेंस? आकृति, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या लगेगा यार? बोलो ना, कोई बोलो प्लीज बोलो। दो कॉइल के बीच में क्या होता है? म्यूचुअल। Sure. म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? μ0 n1 n2 एरिया छोटो बाय एल। अच्छा ये क्या बोला? नंबर ऑफ टर्न्स इन टू सर्कुलर कॉइल्स इज डबल, तो ये भी डबल और ये भी डबल, तो कितना हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस? कितना गुना हो गया? 4 times. 4 गुना, 4 टाइम्स हो गया ना। 4. ठीक है, ये फॉर्मूला आना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड आई बोलो सही है क्या? हम लोग जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 25 तो कैसे भी करके खत्म करेगी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई, डीवी बाई डी इसको बनाता है क्या? हाँ बनाता है सर, बनाता है, बनाता है, बहुत अच्छा। डीवी बाई डी अल्फा बनाता है ना, फॉर्मूला के अंदर अल्फा है कि नहीं है? इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। हाँ सर, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। कैनॉट एग्जिस्ट इन अ रीजन नॉट ऑक्यूपाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अरे भाई, इट कैन एग्जिस्ट इनसाइड ऑल्सो एज वेल एज आउटसाइड ऑल्सो। तो एक्चुअल आंसर ये है ना, अरे ये थोड़ी आंसर, अरे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए ना हमको, यस और नो? देयर इज Yes, ई sir. इनसाइड ऑल्सो एंड देयर इज ई आउटसाइड ऑल्सो। ये बोलता है ई आउटसाइड नहीं है, ई आउटसाइड भी है। व्हाट इज ई इनसाइड का फॉर्मूला? आर अल्फा बाई 2 एंड दिस इज आर स्क्वायर अल्फा बाई 2r, where alpha is nothing but dv by dt। बार बार रट्टा मारो समझो। एंड इसमें फोर्स अगर लगाने का रहेगा तो फोर्स कितना फॉर्मूला लगेगा? q into
ठीक है, एंड इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, मतलब वर्क डन इज जीरो, नॉन जीरो, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है, ध्यान देना, ध्यान दो, पे अटेंशन। टू सर्कुलर कॉइल्स P and Q, concentric coplanar, loop P is smaller than loop Q is smaller than P. If the current I is flowing and decreasing with time, वो मजा आएगा, देखो उधर आदित्य पंडित, Yes, ये sir. आदित्य पंडित, हाँ ये करंट है, देखो करंट इधर जा रहा है I1, ये कैसे फील्ड बनाएगा, ऐसे है ना, नीचे बनाएगा ना, Yes, Yes sir. or no? Inwards. इनवर्ट्स बना रहा है, ठीक है, ये फील्ड इनवर्ट्स बना रहा है। अच्छा, ये करंट कम हो रहा है बढ़ रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या हो रहा है यार, बोलना, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, करंट इज Decreasing. Decreasing. डिक्रीजिंग, सो द फील्ड विल आल्सो डिक्रीज। सो ये जो अंदर वाला कॉइल है वो कौन से डायरेक्शन में फील्ड बनाने की कोशिश करेगा, सेम डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन, Same. सेम डायरेक्शन, मतलब ये भी क्रॉस बनाएगा, तो ये क्रॉस बनाएगा मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट भी सेम रहेगा, Yes, sir. ये इंड्यूस करंट है, बराबर है क्या, सो डायरेक्शन विल फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ पी, बोलो सही क्या, Yes. सही है, सही है, सही है, ठीक है, तो आता है सब लोगों को, अभी अभी कंफर्टेबली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं पूरा चैप्टर, ओके, दो चार अच्छे वाले क्वेश्चन रहेंगे, दैट विल सी, दैट विल सॉल्व, नो नो वरीज अबाउट एनीथिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, गार्गी एक काम करो, कनिष्क का आंसर देगा, कनिष्क, कनिष्क आर यू देयर, यार बोलो ना, Yes, sir. हाँ, देखो क्या बोल रहा है, ये एक सोलोनॉइड है और इसके नजदीक में एक मैग्नेट को लेके आ रहा हूं, बराबर क्या, सही, इफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट इज मूव्ड अलोंग द एक्सिस, मतलब ये शॉर्ट बार मैग्नेट को ऐसे चलाया हम लोग, मूविंग हिम दिस वे with a constant speed, then the best represented EMF will be what? अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ नजदीक आएगा तो ये पोल क्या बन जाएगा, North. नॉर्थ बनेगा, ये मेरे नजदीक मत आओ, बराबर क्या, सही है, Yes, sir. तो ये नॉर्थ बना, नॉर्थ बनने के लिए डायरेक्शन ऑफ द करंट यहाँ पे कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और मेरे को मालूम है अगर ये नॉर्थ बनता है तो ये क्या बनेगा, South. साउथ बनेगा, इतना मालूम है, क्योंकि एक पोल जो रहता है वो डाइपोल एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल तो होता ही नहीं है, सबको मालूम है ना ये सब चीज, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब सपोज यहां से वो पास हो के अंदर एक बार गया ना, तो अंदर कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज अंदर तो कांस्टेंट फ्लक्स है ना, लिंक्ड। हमारा गेम चेंजर कब होता है, जब फ्लक्स या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, अंदर अगर एक बार वो जा रहा है, अंदर जा रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट है, तो कुछ होने वाला नहीं है, गेटिंग इट और नॉट, फ्लक्स शुड चेंज। अच्छा, जब ये यहां से बाहर निकलेगा, देखो मेरी बात सुनो, फिर से एक बार बनाता हूं मैं, यहां से सपोज ये बाहर निकल रहा है, अभी कौन सा पोल बाहर निकल रहा है बेटा, अरे यार बोलो ना, कौन सा पोल बाहर निकल रहा है, साउथ, साउथ बाहर निकल रहा है ना, ये आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और कौन सा पोल बाहर निकला है, साउथ, तो ये कौन सा पोल बनेगा इधर, ये साइड पे कौन सा पोल North. बनेगा, नॉर्थ बन जाएगा, और ये साउथ रहेगा, अरे भाई बोलो यार, Yes, सही sir. है, तो मतलब पहले देखने पे इनिशियल केस में जब व्हेन इट वाज एंटरिंग this is becoming north and this is becoming south, when it is leaving this is becoming north and this is becoming south, मतलब can I say the direction of the EMF is reversing, अरे direction of the current is reversing, direction of the induced EMF is also, Reversing. क्या बोल रहे हैं यार, ओके, रिवर्सिंग, क्या आंसर क्या है, ए बी सी डी बोलो, B. बी है ना, बी है, सही है क्या, सही है ना, ये याद रखना, ये आ चुका है पहले भी, ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो, ध्यान रखो प्लीज,
वीडियोस ऑन करो यार, क्या कर रहे हो तुम? मैथाली वेयर आर यू? हर्ष कोटी, वत्सल, हेतांश, गौतम, वीडियो ऑन करो यार। नमन शाह, कम ऑन फास्ट प्लीज। आई कांट टीच लाइक दिस यार, कैसे पढ़ाऊं मैं? अब मेरी बात सुनो, आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आता है, मजा आएगा, देखना। मेरी बात सुनो, सब लोग मेरी बात सुनो प्लीज। ओके, who's gonna answer man? Who's gonna answer? देखना, मजा आने वाला है। देखो सब लोग इधर ध्यान दो। देखो, a conducting wire frame is placed on a magnetic field which is directed into the paper. ये सबको मालूम है कि ये into the paper है। The magnetic field is increasing. मैथाली, are you there? मैथाली, are you Yes, there? sir. हाँ, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये लूप कौन सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा बेटा? डॉट के क्रॉस। Dot. अगर ये क्रॉस बढ़ा रहा है, देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग ना बोल रहे हैं, तो टू अपोज हिम दिस लूप विल प्रोड्यूस विच मैग्नेटिक फील्ड? Dot. डॉट के क्रॉस। मैथाली विल टेल, मैथाली कौन सा प्रोड्यूस करेगा? डॉट के क्रॉस Dot. डॉट बनाएगा। गौतम क्या बनाएगा? Dot. डॉट ही बनाएगा, डॉट बनाएगा। तो इसने डॉट बनाया। अब मेरी बात सुनना, डॉट 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 शुड बी डोमिनेटिंग। अभी अगर आप देखते हो यहाँ पर, प्रॉब्लम ये है कि ये एक लूप ऐसे लूप नहीं है बेटा जो हम पीछे कर रहे थे ना। अब ये ध्यान है ना, ये सब आईआईटी वाले क्वेश्चन है, ये ऐसे वाला लूप नहीं है, ये ओवरलैपिंग लूप है। अरे देखो यार, समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये ऐसे लूप है ना, देखो ये ओवरलैपिंग लूप है बेटा। अगर ये होता और ये डॉट बनाता तो मैं क्या बोलता भाई, ये हाँ ठीक है, ये डॉट है तो करंट ऐसे जाएगा। सही है क्या इसमें? इसमें सही है। Yes, sir. अभी इधर इधर ये जो दिख रहा है आपको जिगजैग वाला, क्या कौन सा फिगर बनाया है इसने? नहीं, उसमें रूल ये है कि बड़ा वाला लूप शुड डोमिनेट। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अच्छा, डॉट के लिए करंट कैसे जाएगा? मेरे को बात बताओ, डॉट के लिए करंट कैसे जाना चाहिए? अरे यार कुछ तो बोलो यार। Anti-clockwise. डॉट के लिए यहाँ पे बनाया है ना मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज शुड बी गोइंग इन द बिगर लूप, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो उसका रास्ता देखो, ऐसे होगा। सही है क्या? दिख रहा है क्या? Yes, sir. अगर आप छोटे लूप में देखो तो कैसे है करंट? क्लॉकवाइज है, देखो। और क्या हो रहा है ये? हाँ हाँ, ये पूछता है आईटी में, समझा क्या? ऑलवेज रिमेंबर, इस काइंड ऑफ सम्स में बड़ा वाला लूप शुड डोमिनेट, बड़ा वाला लूप शुड डोमिनेट। सही है क्या? मतलब ऐसे कभी कभी है ना, उन लोग 8 नंबर का फिगर देते हैं, ऐसे भी है और ये लूप बना लिया। ये एडवांस का लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, एडवांस में पूछ चुका है, ये पूछ चुका है। अब बोलो, ये तो आता है, ये बनाएगा डॉट। सपोज ये बढ़ रहा है तो ये ऐसे जाएगा ना बेटा। सही है क्या? Yes, sir. रूल ये है कि बड़ा वाला लूप शुड डोमिनेट। बस ये खत्म हो गई बात, बड़ा वाला लूप शुड डोमिनेट, मतलब टोटल डोमिनेंस आ जाएगा ना। ओके, टोटल डोमिनेंस आ जाएगा। ओके, हाँ, ध्यान रखना। ओके, तो क्या है भाई आंसर? इट इज गोइंग फ्रॉम सी टू बी, बी टू ए, बी टू ए एंड डी टू सी। ये सही है, ये वाला, ठीक है। इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट है, आगे एडवांस में काम लगेगा ये चीज की। बड़ा वाला लूप इज डोमिनेटिंग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, प्लीज पे अटेंशन।
A uniform but increasing time varying magnetic field is cylindrical. The direction of the force on the electron P. P अंदर है क्या बाहर है? सर अंदर है. तो यहाँ पर क्या मैं एक लूप बना लूं? अच्छा ये बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है. तो ये खुद क्या बनाएगा? डॉट बनाएगा, क्रॉस बनाएगा, डॉट डॉट बनाएगा. ये डॉट बनाएगा. डॉट डॉट बनने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होने मांगता है? करंट कैसे होना मांगता है? ऐसे होना मांगता है ना. सही है क्या? yes sir हेलो, मतलब कहना इसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है. अच्छा अभी क्या पूछा था? डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन. हाँ 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 हाँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कैसे लगेगा? अभी पीछे वाला सम ही था. कैसे लगेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, मगर अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है तो फोर्स इधर लगने वाला है. याद रखना ये चीज. ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए. तो टुवर्ड्स द राइट. हाँ मैंने कहा था. बस कॉन्सेप्ट आ गया तो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके. ईएमआई से इजी है ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है, तो हो जाएगा आराम से 2 हफ्ते में. ये भी हो चुका है. अभी आप कोई भी सम उठाओ तो आप खुद से भी कर सकते हो. कॉन्सेप्ट सब पढ़ा दिया मैंने. आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं. बैठ के ना 25 सम आराम से सॉल्व कर सकते हो. ये एल डी आई डी टी करने का. क्वेश्चन नंबर 11 पर आता है. A ring B is in coaxial with solenoid A as shown in the figure. The switch S is closed at time T. तो इसको बंद कर दिया. करंट ऐसे जाएगा. करंट ऐसे जा रहा है. अच्छा ठीक है. सपोज यहाँ पर है ना नॉर्थ बन रहा है. सपोज यहाँ पर नॉर्थ बन रहा है बेटा. नॉर्थ यहाँ पर बन रहा है. इस पोल पे यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है सपोज. अच्छा करंट बढ़ रहा है ना स्टार्ट में. दैट मीन नॉर्थ पोल बढ़ रहा है. अरे भाई बोलो. मतलब इनडायरेक्टली कहने से नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है. ऐसे सोचो ना. नॉर्थ yes पोल sir बढ़ रहा है मतलब नॉर्थ पोल का फ्लक्स नजदीक आ रहा है. तो ये बी वाला कौन सा पोल बनाएगा? अगर ये नजदीक आएगा तो नॉर्थ ही बनाएगा. और तो ये क्या करेगा? नॉर्थ और नॉर्थ क्या करते हैं? rebel रिपेल करते हैं. सही है क्या? रिपेल करते हैं. सही है ना? yes sir दिस इज हाउ वी जनरली ट्राई टेंड टू डू इट. क्वेश्चन नंबर 12 पर आता है. A conducting rod is rotated about one of its end. अब मजा आने वाला है. सब लोग इधर ध्यान दो. To a uniform magnetic field with constant angular velocity. The correct graph between EMF induced across the rod rotated about one of its end. तो मतलब ऐसे 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 करके हम लोग याद है ऐसे घुमाते थे रॉड को. अरे भाई बोलो ऐसे. ये घुमाता था ना मैं ऐसे. याद नहीं है? Can you tell me what is the formula for EMF induced? भाई यार ऐसे करेंगे. बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2. कैन आई से दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. आंसर सी है. hey, बोलो. सही है ना? क्या बोल रहा हूँ? yes sir सही सी है. एबीसीडी नहीं है. एबी मतलब एबीडी नहीं है. EMF induced is constant. अब आगे 14th 14th 14 नहीं 15 पर आता है. 15 भी ठीक है. 14 कर लेते हैं. 15 भी कर सकते हैं. A magnetic flux through the stationary loop phi is given as 80 tau minus t. ऐसे क्या है? 80 tau minus t ऐसे ये दिया हुआ. The amount of heat generated. और बोल रहा है रेजिस्टेंस इज R. ठीक है. देखो कैसे करेंगे. बस और कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे बोलो. कैन आई से सबसे पहले डी फाई बाई डी टी निकालता हूँ.
तो डी बाई डी टी ऑफ फाइव, फाइव की जगह क्या लिखेगी, ए टी टाउ माइनस ए टी स्क्वायर। कितना होता है ये, ए टाउ माइनस टू ए टी डी फाइव बाई डी टी, दैट इज डी फाइव बाई डी टी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ई कितना हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी हो गया, दैट इज ए टी माइनस टू ए टी। बोलो Yes, sir. करंट क्या होएगा, ई बाय आर, दैट इज ए टाउ माइनस टू ए टी आर। करंट मिल गया। करंट वरंट नहीं चाहिए आपको, हीट मांगता है। हीट का जनरल फॉर्मूला क्या है, I square RT. बट यहाँ पर जो है ना, आई इज अ फंक्शन ऑफ टी, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, देखो ये फंक्शन ऑफ टी है कि नहीं है। ओके ये क्या हो जाएगा, h विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी फ्रॉम 0 टू टाइम इंटरवल कितना दिया है, टाउ दिया है, टाउ, ये टी नहीं है, ये टाउ है। आई स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा ए टाउ माइनस टू ए टी बाय आर द होल स्क्वायर। ये आर स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये आर इंटू डी टी हो गया। तो कर सकते हो ना ये, हेलो, अरे भाई इंटीग्रेट कर सकते हो ना, तुम लोग कर सकते हो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। को ओपन कर देना, ये स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और फिर सीधा इंटीग्रेट मार देना, ठीक है। और फिर 0 टू टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, आंसर आपको मिल जाएगा। बोलो क्लियर है, फंक्शन ऑफ टी था। Yes, sir. Fine. So that is also correct. You can do it. Okay. Question number 15, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था कि शायद मैंने किसको पूछा भी था, तो सेमी सर्कल इज कनेक्टिंग एसीबी, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल के बीच में मेरे को चाहिए क्या है, कैन आई टेल यू दैट इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल, याद है मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया था, हेलो एक रॉड बना दो, डिस्प्लेसमेंट, हेलो बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस रॉड को अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को काट ही नहीं रहा है। आप जाके सिनॉप्सिस में देखना, ये सेम सम किया है हम लोगों ने। व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, 0. सिनॉप्सिस में दिया है मैंने, ये चीज ध्यान रख लेना। दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दो, गेट द रिजल्टेंट आंसर। ओके फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये अच्छा वाला क्वेश्चन 16 नंबर। अच्छा, when a certain circuit consists of constant EMF and inductance and resistance is closed, the current increases according to the time curve. Only one parameter out of E, L and R is changed. An increase in current follows curve 2. When the circuit is closed second time, which of the parameter was changed in what direction? अच्छा मेरी बात सुनो, Can I say tau is L by R? ये मालूम है क्या, हेलो बोलो। Yes, sir. tau is L by R। जितना ज्यादा टाइम कांस्टेंट रहेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको पहुंचने के लिए ऊपर। Yes, sir. टाइम कांस्टेंट वही टाइम होता है ना जो चढ़ने के लिए 0.636 टाइम्स ऑफ आई नॉट चढ़ता है, हेलो बोलो। तो कैन आई से अगर किसका टाइम ज्यादा है चढ़ने का, 1 के 2? देखो 1 तो फटक से चढ़ गया ऊपर, अरे यार 2 को टाइम लग रहा है ना, 2 इधर चढ़ा, बराबर है क्या, तो इसका टाइम ज्यादा लगा ना। Yes, sir. कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, हम लोग क्या क्या। तो T2 is always greater than T1, बोलो। Yes, sir. मतलब टाइम कांस्टेंट ऑफ 2 इज ग्रेटर देन टाइम कांस्टेंट ऑफ 1, इतना मालूम है क्या। ये सब एडवांस में ना इधर से
दे हैव मेड कट शॉर्ट फ्रॉम एडवांस ओनली, मतलब ये जो सम्स है, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो एल ज्यादा है, या तो आर कम है। हेलो, Yes, sir. Yes. या तो एल ज्यादा है, या तो एल को बढ़ा दो, या तो आर को कम कर दो। अरे आंसर में क्या दिया है देखो जरा, L is increased. एल इज इंक्रीज, बराबर क्या हो गया, आंसर खत्म हो गया। हो गया ना आंसर। आर डिक्रीज है ही नहीं ना क्वेश्चन में, पता है रहेगा थोड़ी यार, दो दो आंसर थोड़ी, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना, तो ऐसे टाइप के कर्व जब भी आएंगे तो हम लोग टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं, टाइम कांस्टेंट की बात करेंगे। और अगर ये सी आर सर्किट रहेगा तो सी आर आएगा ना, टाइम कांस्टेंट है सी आर, आर सी। ओके, we come to the, अब ये मजेदार है, इसमें नहीं बात। 18th question, a square loop of side B is rotated with a constant magnetic field angular velocity omega as shown in the figure, the EMF induced in it। आपको याद है रोटेटिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड सिखाया था मैंने, सिखाया था क्या? डेरिवेशन कर देंगे, 2 मिनट लगेगा। उसको क्या बोलते हैं? रोटेटिंग कॉइल इन अ, थियरी में सिखाया था, इन मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनो, 2 मिनट में डेरिवेशन खत्म करता हूँ। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सब लोग मेरे साथ में रहो प्लीज। देखो, सपोज देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर ध्यान से मेरी बात सुनो, और यहाँ पर एक कॉइल मैंने रखा है, दिस वे काम करता है, ऐसे नहीं करता चलेगा क्या? कैन आई से एरिया वेक्टर भी इधर है? कैन यू टेल मी व्हाट आर द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड? 0. 0. तो फ्लक्स इनिशियली इज मैक्सिमम, फ्लक्स इज मैक्सिमम, एन बी ना, इधर एन बी है। अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. सपोज अभी मैं क्या कर दूं, अब मैं इसको घुमा दूं, इसको घुमा दिया मैंने, एरिया वेक्टर मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया, कहने से ये मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा, सही है क्या? इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, चलेगा ना? Yes, sir. ऐसे घुमा रहा हूँ, एरिया वेक्टर चलना है, एरिया वेक्टर। तो ओनली द फ्लक्स नाउ NAB cos theta. which could also be written as NAB cos omega t, theta is omega t na, circular motion, Yes, sir. rotational motion। अच्छा, can I say EMF induced at every instant of rotation will become d phi by dt या minus d phi by dt में लिख सकता हूँ? You will become minus of d by dt of NAB cos omega t। चलो डेरिवेटिव निकालो यार फटाफट इसका, क्या हो जाएगा? क्या होता है यार? प्लस NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। हेलो, Yes, सही है sir. क्या? अच्छा, इस चीज को मैं पकड़ता हूँ ई नॉट। मैंने आपको बहुत टाइम बताया है कि साइन टर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को छोड़ के जो भी बचता है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। अरे मेरा बच्चा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, तो साइन टर्म को छोड़ के जो भी बचा वो उसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ई नॉट हो गया, ई नॉट या ई मैक्सिमम क्या बोलते हैं? इट इज एन ए बी ओमेगा। डिराइव किया है मैंने, शायद आपने वीडियो नहीं देखा है, देखा है तो भी रिवीजन हो जाएगा। ये ई नॉट नहीं है, तो ई विल बिकम ई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो हार्मोनिक फंक्शन है। अरे भाई बोलो, कैन आई से Yes, sir. फ्लक्स चेंज के कारण, फ्लक्स चेंज के कारण, फ्लक्स चेंज के कारण जो ईएमएफ बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। बोलो, ये साइन थीटा वाला फंक्शन है ना, ऑसिलेशन मालूम है ना?
इस ईएमएफ को क्या मैं बोल सकता हूँ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ? हेलो? Yes, sir. Yes, और sir. इसके कारण जो इसमें करंट बनेगा, वो करंट भी कैसे बनेगा? अरे भाई I is E by R ना, कैन आई राइट E नॉट साइन ओमेगा t by R? But what is E naught by R taken as I naught? So I will become I naught sin omega t. इसका कहना ही से इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ऐसे ही बनेगा। कहना से ये जो करंट बना है इसका नाम क्या है? Alternating current. यहां से शुरुआत होती है ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स की, एसी सर्किट्स, नेक्स्ट चैप्टर। यस और नो सर, क्लियर है? तो ये चीज शुरुआत एक्चुअली है ना, दोनों चैप्टर साथ में ही है। जैसे कहे कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर साथ में है, वैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमआई साथ में ही है। यहाँ से ही शुरुआत होती है उसकी, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक्चुअली यहाँ से शुरुआत, इस डेरिवेशन से शुरुआत होती है। भाई आंसर क्या है बोलो? आंसर ये है ना बेटा, ये देखो ये वाला आंसर है। दैट इज ई विल बिकम एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। व्हाट इज एरिया ऑफ द लूप? इसका एरिया कितना रहेगा? B square. बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एन तो दिया नहीं, n 1 दिया है, एक ही लूप है। तो E will become 1, area will become B square, B omega sin omega t। ये हो गया आंसर। सही क्या? Yes. हेलो बोलो, सही है ना? ये डेरिवेशन है, इसको हम लोगों ने HSC में प्रूव भी किया और ये आता भी है HSC में डेरिवेशन के तौर पर। ठीक है, HSC का फर्स्ट लेक्चर था जो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा था आप लोगों को, ये वही चीज है। ठीक है, देख लो भाई, देख लो। ऑल्टरनेटिंग करंट के भी 2-3 वीडियोस आएंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आएंगे, वो देख लेना, तो ऑल्टरनेटिंग करंट भी पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। बस यार टाइम पास करना है, कुछ आता है सब कुछ। An EMF of 15 volt is applied in a circuit containing 5 Henry inductance। तो L कितना है? 5 हेनरी। और रेजिस्टेंस कितना है? 10 ohms। तो टाउ कितना रहेगा? टाउ 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 Half. हाफ सेकंड। The ratio of the current at t is infinity to t is equal to 1 second। अब मेरी बात सुनो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट जो चढ़ता है इंडक्टर में? अरे मैन नहीं भाई, 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ, ये है ना? हेलो, बिकॉज इंडक्टर initially acts as open and finally acts as short। तो करंट चढ़ना चाहिए ना इसमें, बोलो। Yes, sir. ये ध्यान रखना, ये उल्टा है किसका? कैपेसिटर का। ये इंडक्टर की बात हो रही। I is I naught is the maximum current which is there। अच्छा, maximum current कितना रहेगा? E by R। अरे यार शॉर्ट हो जाएगा तो E by R ही रहेगा, बोलो। ऐसे है ना? Yes, sir. ये है E by मैक्सिमम करंट, तो ये शॉर्ट हो गया तो E by 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। टाउ कितना है? हाफ है। हाँ, अब ये टाइम कितने टाइम पे मांग रही है? पहले बोला टाइम इन्फिनिटी पे। टाइम इन्फिनिटी पे आई कितना हो गया? अरे ई नॉट बाय आर। ई नॉट कितना है? 15 है। 15 बाय आर कितना है? 10 है। 1.5। सही है क्या? Yes, sir. या ई नॉट बाय आर लिख दो ना, बेटर है यार। ये सब वैल्यू निकल एंड में कैंसिल होने वाला है सब। अच्छा, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड में क्या होगा? दिस इज एट आई इंफिनिटी। आई इज इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या करेंगे? ये हो जाएगा ई नॉट बाय आर 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय टाउ। टी 1, दिस इज हाफ। सही क्या? Yes, sir. तो ये 2 हो जाएगा। तो ये
करंट 1 सेकंड हो जाएगा ई नॉट बाय आर 1 माइनस ई रेज टू -2 दैट इज 1 अपॉन ई स्क्वायर. Yes, sir. अरे यार e square minus 1 by e square. So what is I at infinity minus I at minus नहीं है डिवीजन है. तो I at infinity upon I at 1 second. क्या आंसर क्या है? E square upon E square E minus 1. कैंसिल e square upon e square minus 1. ठीक है चलो आगे 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 फास्ट 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 फास्ट. ओके सर ओके वेरी गुड. चलो यार आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब आते हैं 21 की तरफ. हाँ ये कर लेते हैं 26 भी ठीक था. 26 कहाँ से आ गया यार? 19 से सीधा ये देखो ये छापा ही नहीं है उसमें. ठीक है चलो 26 वाला करता है. ये थोड़ी ऐसे थोड़ी होना चाहिए. ठीक है चलो ये वाला सम करते हैं. नेक्स्ट टाइम में देख लेंगे आगे. इधर ध्यान दो. चलो फटाफट आ जाओ. चलो इधर आ जाओ फास्ट. पे अटेंशन टू. वो सम्स में प्रिंट करवा लूंगा नेक्स्ट टाइम. इन अ फिगर शोन VAB एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड. अब मजा आने वाला है. बहुत मजा आने वाला है मेरी बात सुनो. ये क्यू है. ये क्यू है सर. क्यू है ये क्यू है. तो dq बाई dt क्या बनता है? क्या बोलता है? dq बाई dt क्या होता है? करंट होता है ना. चलो बोलो dq बाई dt क्या रहेगा? अरे बोलो मैन. 80. करंट बढ़ रहा है कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? But बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है. अच्छा कौन सा प्लस टर्मिनल दिया है कौन सा नेगेटिव टर्मिनल दिया है? देखो दिया है फ्री में दिया है. अरे दिया है ना ये दिख रहा है. Yes, sir. दैट मींस करंट का डायरेक्शन ये है. क्योंकि अगर करंट ऐसे फ्लो होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा ना. हेलो. करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. मालूम है सबको. करंट ऐसे आएगा तो ये प्लेट पे पॉजिटिव जमा होगा ना. वही तो नेक्स्ट प्लेट पे नेगेटिव इंड्यूस होगा. अरे सर क्या बोलते रहते हो आप? Yes, sir. सही तो है. सही है ये. ध्यान रखना ये चीज. तो यहां से अभी मुझे क्या करना है? अभी मेरा फिंगर लेके जाना है फ्रॉम A to B. चलो शुरू करते हैं. VA करंट ऐसे जा रहा है. चलो बोलो शुरू हो जाओ. VA माइनस IR के प्लस IR. मैं तो ऐसे जा रहा हूँ. Plus. प्लस IR प्लस I कितना 80 है. और t इज इक्वल 1 सेकंड पे मांग रही है. तो t इज इक्वल 1 सेकंड पे क्या करेंगे? 8 हो गया ना. हेलो. Yes, sir. -4. और इधर 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 क्या लिखने का? इधर क्या लिखने का? प्लस LdI/dt. ए भाई ए यस और नो. Yes, sir. अरे करंट से उल्टा जा रहा है यार. अगर सेम डायरेक्शन में जाता तो -LdI/dt लिखता मैं. ये तो करंट से उल्टा जा रहे हो तुम तो. फिर क्या लिखेंगे? ये कैपेसिटर आ गया. कैपेसिटर में लिखेंगे प्लस Q/C इज इक्वल टू VB. Yes, sir. हेलो हेलो प्लस Q/C बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस. ऐसे ऐसे वही शुरू करता है. ये कितना हो गया? VA माइनस VB. 8 2 16 यस -16 प्लस 4 माइनस LdI/dt माइनस Q/C उधर गया. तो VA माइनस VB -16 प्लस 4 -12 माइनस L कितना है क्वेश्चन में? 2 है. कोई बता सकता है DI/dt कितना हो गया? 8. 8 हो गया ना. माइनस Q/C. Q कितना है? T इज इक्वल टू 1 सेकंड पे 40 square. 4 है ना. 4 40 मतलब T इज इक्वल टू 1 सेकंड में क्या रहेगा? 4 ही रहेगा ना. 4. और कैपेसिटर का वैल्यू 2 है. अरे मैन हेलो. Yes. ये कितना होता है? ये होना है यार. ये -14 और 16 कितना होता है? Minus. ये हो गया
सही क्या? अब चाहे कैपेसिटर रास्ते में आए कि इंडक्टर आए कि बैटरी आए कि रेजिस्टर आए, सब आते हैं मेरे को। अरे बोलो यार। Yes, sir. और सबको मालूम है पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पहचानने का, करंट कैसे बढ़ रहा है, करंट कैसे कम हो रहा है। करंट बढ़ेगा तो उस तरफ कैपेसिटर की साइड पे प्लस जमा हो जाएगा, अगर करंट कम हो रहा है तो दूसरी साइड पे प्लस जमा होगा। वो आगे एडवांस में सिखाया जाएगा। ओके, करंट अगर कम होता था ना यहाँ पर तो दूसरी साइड पे जमा होता है। ठीक है, याद रखना ऑपोजिट। ठीक, ये भी ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। 27 पर आता है। Two coils of mutual inductance 0.005 Henry. Current changes in the first coil at the rate of current जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ये फंक्शन है I नॉट साइन ओमेगा टी। अरे मजा आने वाला है। ऑल्टरनेटिंग है ना। I नॉट is given, omega is given. The maximum value of EMF. अरे सर maximum value of EMF. Can I say E is M di by dt? अरे यार यही तो फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला। M di by dt निकालो उसका डेरिवेटिव। बोलो सही है क्या? हेलो। Yes, sir. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ मतलब cos 0 पकड़ लो। तो मैंने आपसे क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को छोड़ के जो भी बचता है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अरे वही तो कहा था मैंने। हेलो। Yes, sir. ये मैक्सिमम क्या हो जाएगा? m I नॉट ओमेगा। m कितना है क्वेश्चन में? 0.005। I नॉट कितना है? 10 है। ओमेगा कितना है? 100 पाई है। इसको वैल्यू निकाल लेना, आंसर वोल्ट में। क्लियर हो गया क्या भाई? 27, आंसर इज 55 वोल्ट। क्लियर है? Yes, sir. रुकने का नहीं, खुद से सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा 50। आज ने आज बैठो सॉल्व कर लो, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। सब्जेक्टिव भी सॉल्व कर लेना, हो जाएगा वो। दो चार क्वेश्चन थोड़े इधर उधर के हैं वो देख लेंगे हम लोग बाद में, बट जनरली आपसे खुद से सॉल्व हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 30 तक कर लेते हैं। An inductance of 2 Henry carries a current of this much to prevent sparking when the circuit is broken. A capacitor is connected across the inductor. आपको मालूम है इंडक्टर अपना एनर्जी किधर दे देता है? कैपेसिटर में। अरे यार एलसी टाइम सर्किट। हेलो। द वोल्टेज रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर इज हाउ मच। जनरली क्या होता है मालूम है? देखो अभी तो जनरली नहीं होता, अभी कैपेसिटर लगा देते हैं वो लोग। पहले जमाने में गीजर होते थे, गीजर है बाथरूम के अंदर, गीजर होता था। आप अचानक बंद करके जाइए बटन तो अंदर स्पार्क निकलेगा फटाक करके। या एसी को अचानक अगर मैं ट्रिप करने जाऊंगा तो क्या होगा? स्पार्क निकलेगा। अभी आजकल बहुत कम होता है। ओल्डन डेज में ओके हमारी मम्मी हमसे कहती थी कि भाई ओके आराम से बंद करो भाई, वरना क्या होगा उसमें से स्पार्क निकलेगा, यू विल गेट अ शॉक। बराबर है क्या? ऐसे होता था। अब आजकल वो लोग क्या करते हैं जनरली, जब से कैपेसिटर्स आया है तब से वो लोग क्या करते हैं, वो जो चीज है ना जिधर से स्पार्क निकलने वाला है, क्योंकि कटिंग ऑफ द सर्किट हो गया ना वो टाइम पे, आपने सर्किट को बंद किया। तो एक्चुअली क्या हो रहा है देखो, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, एम डी आई बाई डी टी के कारण ये dt को आपने बहुत छोटा फड़क से बंद किया। तो dt बहुत छोटा है ना बेटा, खड़क करके बंद कर दिया तुमने। तो क्या होगा अगर dt बहुत कम है ना सर्किट को बंद करने के लिए, तो ईएमएफ बहुत ज्यादा इंड्यूस होगा। और ईएमएफ अगर वो डिवाइस में इतना ज्यादा इंड्यूस हो गया हजारों के हिसाब से, तो उसका ट्यूब व्यूब सब उड़ सकता है ना। गेटिंग इट? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग वो जो इंडक्टर है ना जिधर एनर्जी स्टोर्ड है, हमारा जो रेजिस्टर है जहां पर एनर्जी स्टोर्ड है, उसके अक्रॉस हम लोग क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर लगा देते हैं, ताकि ये जो एनर्जी स्टोर्ड है हमको मालूम है ये हाफ एल आई स्क्वायर डीके करने वाला है, क्योंकि स्विच मैंने यहाँ से बंद करना है ना, खोलना है ना स्विच। तो यस और नो? Yes. हेलो। Yes, sir. तो कहना से ये एनर्जी किधर ना किधर तो दिखाई देना चाहिए। अगर ये है तो ये एनर्जी किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट सर? स्पार्क। मगर अभी जब से कैपेसिटर आया उस लोगों ने क्या किया, उन्होंने जब स्विच खोला तो यहाँ पर उन्होंने कैपेसिटर लगा दिया। इसका मतलब क्या हाफ एल आई स्क्वायर किस में बदल जाएगा? CV square.
इतना कुछ स्पार्क नहीं आएगा ना, या स्पार्क आएगा तो छोटा मोटा स्पार्क आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। गेटिंग? तो वो जो ईएमएफ हजारों का इंड्यूस होने वाला है उसके कारण शॉक नहीं लगेगा जब। तो ये वही कहना चाह रहा है कि इंडक्टर का एनर्जी जो है वो कैपेसिटर ने ले ली थी। रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर कितना है? तो मेरे को मालूम है वोल्टेज रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर। कैन आई से हाफ Li स्क्वायर इज कन्वर्टेड इनटू, कोई तो हो रहा है, ये कैंसिल। वोल्टेज रेटिंग ऑफ द कैपेसिटर ये है, तो V विल बिकम इक्वल टू Li स्क्वायर बाई C, रूट ऑफ दैट। बोलो सही है क्या? Yes, हेलो, sir. ये ढूंढ लेना, ठीक है ना? हेलो बोलो, क्लियर है? तो कर चुके हैं हम पहले। कैपेसिटर, अरे मैन हेलो, तो कैन आई से L di by dt was equal to Q by C, याद आ रहा है? ये भी यूज करे सकते क्या? नहीं नहीं, यूज नहीं कर सकते। हाँ ये नहीं, तो यहाँ पे di by dt मालूम नहीं है ना, गेटिंग इट हो ना? तो ये चीज इधर नहीं चलेगा अभी, वरना ये कर लेना, मतलब एनर्जी कंजर्व होगा यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 29, a magnet is taken towards a conducting ring, एक रिंग है और एक मैग्नेट है, इसको नजदीक लेके जा रहा है। A constant current of 10 milliampere is induced in it, तो यहाँ पर इसके कारण एक करंट आ रहा है, करंट इज 10 milliampere, सही है क्या? एंड द टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका? 0.5 ohms, 0.5 ohms in 5 seconds the magnetic flux changes by, कौन सा फॉर्मूला? कैन आई से करंट इज E by R, E मिल जाएगा, E is d phi by dt, Yes, sir. हो गया ना आंसर? अभी इतना तो कर सकते हो ना यार, हेलो। Yes, sir. मतलब एक चीज अगर आप एनालिसिस करेंगे ना, तो पूरा जो गेम है ना वो फैराडे और लेंस के ऊपर बेस्ड, पूरा पूरा चैप्टर। थोड़ा सोच के देखो यार, हाँ? मेरी बात मत मानो, तुम लोग खुद सोच लो। पूरा चैप्टर फैराडे और लेंस के ऊपर बेस्ड है और कुछ नहीं है। ओके, 30 पर आता है, वही है टाइम पास। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। 30 क्या करने का? आई दिया है तुम्हारे को 10t + 5, द पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB। चलो फिंगर ऐसे लेके जाएंगे हम लोग, शुरू हो जाओ। क्या चाहिए तुम्हारे को? VB -10 प्लस L di by dt माइनस L di by dt, करंट इधर आ रहा है देखो, Yes. Plus. प्लस L di by dt प्लस IR इज इक्वल टू VA। मेरे को VA - VB मांगता है, तो VB को इधर ले लेगा, बाकी सब तो सेम है। -10 प्लस L, L इज 1, di by dt कितना होएगा इसका डेरिवेटिव? 10 हो गया ना, 10 हो गया ना। I कितना है? एट टाइम 0 मांग रहा है, तो 5 हो गया। इंटू R कितना है? 3 है। अरे कुछ है क्या यार, ये 10 और ये 10 तो उड़ गया, तो 15 ही आया ना आंसर। 15 वोल्ट सर, 15 वोल्ट। गेटिंग इट और नॉट सर? Yes, sir. एकदम स्मूथली आई थिंक सो आज का लेक्चर निकल गया है। तो आराम से वो 50 क्वेश्चन भी 58 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो आज बैठ के। मंडे को जनरली आई विल फिनिश ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेवल, एंड वेडनेसडे आई विल बी स्टार्टिंग विद the subjective part of 20 other questions. There are 20 of subjective. ठीक है, ठीक है। विराट सर का पोर्शन खत्म हो गया, और अभी है ना एक देखो यार, अक्टूबर में है ना, अक्टूबर में नवंबर में पोर्शन तो जो खत्म होगा ना, उसमें 2 चैप्टर बाकी रह जाएंगे अगर मैंने देखा है तो। कौन से 2 चैप्टर बाकी रह जाएंगे? वो मेजरमेंट और स्केलर वेक्टर्स। तो मेरे को चाहिए कि यार वो भी छूटे ना, तो मैं शायद संडे वो लेक्चर्स इंट्रोड्यूस करूंगा। एवरी संडे मेजरमेंट का लेक्चर,
ओके, एक महीने तक 4 लेक्चर हो जाएंगे 1.5 घंटे के, और एवरी नेक्स्ट संडे जो रहेगा नेक्स्ट मंथ रहेगा स्केलर वेक्टर्स। गेटिंग इट और नॉट? तो आप लोग अगर नहीं सॉल्व करते तो यार लेक्चर में बैठ के सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेजरमेंट से एक क्वेश्चन आता ही है। अगर आप देखेंगे ना पेपर तो एक क्वेश्चन पक्का आता है, पक्का आता है। स्केलर वेक्टर्स का इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो एवरी संडे देयर विल बी लेक्चर्स। मैं ये संडे या नेक्स्ट संडे से इंट्रोड्यूस कर दूंगा लेक्चर्स, जो भी है वो देख लेना। इजी चैप्टर्स है, तुम लोग थोड़ा हैंडल कर लेना। क्लियर है? आई लेक्चर्स हो जाएंगे आपके, मगर वो थोड़ा संभाल लेना तुम लोग। चलो, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। Bye, sir. Bye, sir. Yes, Thank you. sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you.